जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणों विच शोभायमान गुरु रूप साध संगत जीओ, हर रोज़ आप जी सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की उचारण की हुई बाणी जपजी साहिब की लड़ीवार व्याख्या सरवण करते आ रहे हो। अज का जो प्रसंग है, चौथी पौड़ी विच सतगुरु कृपा कर रहे हैं। इस पावन शब्द की आरंभता है, अकाल पुरख वाहिगुरु आप सदीव काल कायम रहिंदा है। उस दी वडियाई भी सदा स्थिर है, कायम रहन वाली है। फिर इत्थे एक सवाल पैदा हुंदा है, जिन्ने ये सारा संसार रचिया है, जिदी होंद सदा कायम है, फिर वो जिहड़ा वजूद जिहड़ी हस्ती शख्सियत है अकाल पुरख वाहिगुरु की उहदा कोई मूँह जां उहदी कोई भाखिया बोली भी है? क्योंकि जिन्हां नाल सारे संसार नूं उसने बनाया ते संसार नाल उहदा लगाव है, प्यार है। फिर जिहड़े उहदी बंदगी करदे ने वो उस नाल बोलदे भी हन, गल भी करदे ने, तां फिर वो किहड़ी भाषा विच अगों जवाब दिंदा है? सतगुरु ने बचन कीते, कहन लगे उहदी भाखिया दा अर्थ है बोली, भाव दा अर्थ है प्रेम। परमात्मा दी जो बोली है, जो भाषा है, वो संसार दे अखरां दी बनी हुई नहीं है। ना वो उर्दू विच बोलदा है, ना वो फारसी विच बोलदा है, ना वो अरबी विच बोलदा है, ना वो इंग्लिश विच बोलदा है। हिंदी ते पंजाबी होर किन्नियां भाषावां ने जगत विच, इन्हां भाषावां विच वो गल नहीं करदा। पर जदों किसी ने उहदे नाल गल करनी होवे, उहदे अगे अरदास करनी होवे, ते कोई भी बंदा जदों अपनी भाषा विच उहदे अगे अरदास करदा है, बोलदा है, भावें वो किहड़ी भाषा संसार दी, पंजाबी, हिंदी, फारसी, अरबी, कोई किसे बोली विच बोले ते उहदी बोली समझ लैंदा है। अपनी उहदी बोली प्यार है, यानी कि उहदी भाषा प्रेम है। जिवें कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां भाषा विच नहीं बोलियां जांदियां, जिवें जिहड़ा राग है, संगीत है, उहदी कोई भाषा नहीं। साज जदों वजदा है, साज दी कोई भाषा नहीं है, वो सारे जगत दा साझा है। साज, संगीत, राग जिहड़ा है। इस करके तुसी देखोगे कि जिवें एक संगीत द्वारा, एक साज द्वारा किसी सप नूं कीलिया जांदा बीण वजा के, तां कोई नहीं कह सकदा भी वो बीण जिहड़ी पंजाबी विच वज रही है कि हिंदी विच, जां जिहड़ा सप उहदे नाल कीलिया गया है उहदे अगे मस्त हो गया है,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੀਣ ਵਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਬੀਣ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੋ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲ ਲਵੋ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੈਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ। ਚਕਵੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੀ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ। ਦੋ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੰਸ ਕਵੇਂ ਜਾਂ ਜੋਤ ਕਵੇਂ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦ ਕਵੇਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਵਲੇਟੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਸਤਰ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਾਈ ਮੈਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੜਾ ਪਹਿਚਾਨੇ ਆ, ਵੇਖੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਜੋਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਓ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਧੋਈ ਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈ ਜਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈ ਜਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੋਈ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਭੈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਲੇਟ ਲਈਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ,
जिवें एक अग है तो एक अग का सुभाव है गर्म होना, इस तरह एक बंदे साड़ी जिंद है तो एक जिंद का सुभाव है प्रेमी होना। जिवें अग का सुभाव गर्म होना है, अपने आप अग नूं कहो तू गर्म हो जा, की अर्थ होणगे? जिथे अग बल रही है, जिथे अग बलदी होवे, कदी तुसीं सुनिया अग नूं कहंदिआं बई तू अपने विचों गर्मी पैदा कर? नहीं, उन्होंने गर्मी पैदा करन दी लोड़ ही नहीं, गर्मी उहदा सुभाव ही है, उहदे विचों अपने आप पैदा ही हो रहा। अग कदी ठंडी नहीं हुंदी, गर्म हुंदी है। तां जे प्रेम नूं पाउणा है ना, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह कह रहे ने, ते जुगत ये है पहलां अपने आलियों दुआलियों गंद लाउणा पएगा, जिहड़ा खोपरी विच जम्मिया होया साडे विच, हंकार दा, जानकारी दा, मैं कुछ कर सकना, मैं रब नूं पाउणा है, मैं रब नूं नहीं पाउणा। ये गरीबी दा हंकार, अमीरी दा हंकार, बेईमानी दा हंकार, ईमानदारी दा हंकार, नास्तिकता दा हंकार ते आस्तिकता दा हंकार, किन्नी तरह दे ने, किन्नी तरह दा कबाड़ है साडे दुआले। ये सारे दे सारे हंकार लाउणे ही धर्म की साधना है, होर कुछ नहीं जे, एवें भरम विच ना पैना। ये काम ना जिन्ना चिर कीता, कपड़े जिहड़े मर्जी पा लेना, उन्होंने नहीं करना कुछ, जिन्ना चिर अंदरों ना लाया गया। वो वस्त्र जिहड़े धार्मिक पुरुषों ने सानू दिते ने, वो तो प्यार दे चिन्ह ने कि बंदे नूं चेता रवे। जे गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 ककार दिते, रंग भी दे दिते सानू, मर्यादा दित्तियां, वो तां कि इस बंदे नूं चेता रवे मैं प्रेम तक जाना है, अंदर नाम नूं लभ लैना जीवन विचों। जिन्हों गुरु रामदास जी कहंदे ने, आ नाम बाहरों जप ते अंदरले नाम नूं इहदे द्वारा लभ लै। ये गुरु की कृपा तो बिना नहीं मिलेगा। हौं बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम परगांझा। उन्हों कुछ भी कह लवो, प्रेम कहो, नाउं कहो। जिन्हों गुरु साहब ने कहा ना, अमृत वेला सच नाउं, ये नाउं दे अर्थ भी प्रेम ही ने। इसे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा भी जिन प्रेम कियो। गुरु नानक देव जी ने कह दिता अमृत वेला सच नाउं, आद सच। इत्थे सच दे अर्थ ही प्रेम ने। असीं इन्हां चीज़ां नूं मिण दिता अपनी भाषा विच। साचा साहिब, साचे दे अर्थ भी प्रेम बनते हैं। सब कुछ जिथे जिथे परमात्मा की ते उहदे नाम की गल आवेगी, है ही सारा प्रेम। तो जिहड़ी बेनती सांझी कर रहा सी, गुरु साहब ने प्रेम तक जाण दे राह ते दस दिते ने कि रब दा प्रेम की है, वो किवें प्रगट होएगा। पर यह गल वखरी, असीं अपने ही मन नाल, अपने उस हिस्से नाल ही रब नूं मूर्तिमान कर लैने आ, फिर उहनूं प्रेम करने आ। है छोटा जिहा, बिल्कुल कम नहीं आउण वाला। तो हजूर ने तरीका दसिया, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा, जन नानक बिन आपा चीने। जे तू परमात्मा की भाषा नूं सुनना, गुरु साहब ने कहा ना भी मेरे कोलों दी भाषा आउंदी है। भाषा दे अर्थ, बाणी दे अर्थ भाषा। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, बाणी दे अर्थ ने बोली। रब मेरे नाल बोलदा है। भगतां ने भी कहा, पूछिए जी किहड़ी भाषा विच, तुहाडे वाली विच? नहीं, वो पिछों आएगी भाषा। ते जिहड़ा संत है, गुरमुख है, भगत जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच आई, वो एक इस तरह की शख्सियत है जिन्हें परमात्मा की बाणी उस रूप विच सुनी जिन्हों प्रेम की बोली कह रहे हैं अज गुरु नानक देव जी। भाख्या भाओ अपार। फिर जिन्हें सुनी वो जेड़े देश विच रहिंदा सी ते जेड़े समाज विच उन्हें ट्रांसफर की। भगतां ने रब की बोली नूं इस तरह नहीं सुनिया जिवें इत्थे लिखी है। वो तो अदृष्ट सी, उहदे कोई अखर नहीं सन, उहदे कोई अखर नहीं सन, कोई भाषा नहीं सी। जदों सुरत उहदे नाल लगी तां फिर एक पासे उन्हां दी सुरत परमात्मा नाल, उतों जिहड़े तजर्बे होए उन्होंने बाहर ट्रांसफर कर दिता, अपनी बोली विच लिख दिता।
ये बाणी जिहड़ी है ना उस बोली नूं बदलिया गया है साडी भाषा विच। हुण ये साडे कोल बड़ा वड्डा खजाना आ गया। वेखो धार्मिक रहबर बड़े आए ने, किसी ने पहाड़ चुक लिया, किसी ने चंद्रमा के उत्ते अपना परना मारिया, कहते उन्होंने दाग पै गया। कई कहानियां ने ना तुसीं सुनते हो, बड़े आए अवतार पैगंबर, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ। पर सतगुरु ने जिहड़ा कम कीता वो बड़ा महान सी। वो किहड़ा? रब दी भाषा नूं उधरों सुन के ते इधर साडी भाषा विच लिख दिता ते सानू एक जुगत दस दिती। कहन लगे इस बाणी दा कर अभ्यास, इस बाणी नूं जप, इस बाणी नूं गा, इहदी विचार सुन, इनू पढ़िया कर। जदों तू बाणी दा रूप होना शुरू हो जाएगा ना, तेरा अपना आपा बाणी विच लीन होना शुरू हो जाएगा। जिहड़ी अवस्था विचों बाणी उचारी गई सी, बाणी तेनू खिंच के उत्थे लै जाएगी। ये तरीका है, बड़ा सब तो सरल है। इस तो होर इत्थे कोई समाधि दी, किसी ध्यान दी, किसी 84 आसना की कोई लोड़ ही नहीं रही। क्यों? जुगत ही बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। वो केड़ी कि बाणी दे बारे बचन कहे गए। हुण वेखो ये सारे हिस्से ने बाणी दे। कई बार असीं कहने आ बाणी पढ़न का की लाभ, विचारनी चाहिए कली। कुछ कहते विचारनी नहीं चाहिए, कली पढ़नी चाहिए। ये जिहड़े मसले ने असी आप ना सुलझाइए, गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पुछ लईए। हजूर ने क्या ये तिन्ने चीज़ां तू वरत लै। बचन कीते ना गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच कि प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या। सुभाख्या का अर्थ फिर प्रेम है। प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुरपूरे तू रखिया तीन कम कर। गाउणा भी है, कीर्तन भी कर, कीर्तन सुन भी इसका। इनू सुनना भी है। जदों किते सहज पाठ होवे उदों सुन के वेख तेनू गल्लां मिलणगियां जिहड़ियां तेरे दरवाजे खोल देणगे। सुनना साडी कौम दे विच सुनन ते नहीं रखी गई सी। सिੱਖੀ दी सारी साधना सुनन नाल ही संबंधित है। 4 पौड़ियां अगे आउणगियां, सुनन नाल ये हो जांदा, सुनन नाल ये हो जांदा। सिੱਖ दी सब तो महान साधना ओदी जुगत ही सुनन दी अंदर योग्यता है कि वह सुन सके। ये सच्चाई है। जिस सिख तो सुनिया नहीं जाता, पहला तो वह बैठता नहीं। जे वह बैठता है तो वार वार वो सुनन तो असमर्थ हो जाता है। वह मन सुनन वास्ते सहायता नहीं करता। उन्होंने समझ लेना चाहिए कि अजे मैं सिੱਖੀ दे दरवाजे दे विच पैर नहीं रख सकिया। उन्होंने मन लेना चाहिए। सुनन की कला नहीं आई, सुनन की समर्था नहीं आई। सिख की नींह सुनन ते रखी गई है। स्रोत तो ओदी जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि स्रोत दे बड़े नेड़े है आत्मा जिन्हों असी पाउणा है। तो जिन्हों सुनन की जाच नहीं आई वो रवायती सिख हो सकता। रवायती सिख राशन कार्ड पे जो नाम आ सकता है सिख है, जां उन्होंने लोग कहणगे सिख है। सिख वो गुरु ग्रंथ साहिब की नज़र विच उस दिन बनेगा जिस दिन उहदे विच सुनन की कैपेसिटी योग्यता बन गई, समर्था आ गई उहदे विच सुनन। हुण सुनन दे अगे कई हिस्से ने, वो इत्थे मैं अज दे विचार विच वर्णन नहीं कर सकता। सुनना, समझना, सुनना ते समझ तो पार हो जाना, सुनना ते सुनने वाली चीज़ विच लीन हो जाना। सुनदियां सुनदियां वो शब्द ही रह जाने ते सुनने वाला बचना ही ना। ये 4-5 स्टेजां ने सुनने वाले दियां। ज्यों ज्यों करेगा समा लगेगा उत्थे जाण वास्ते, चला जाएगा जरूर। तो बेनती जिहड़ी साझी कर रहा सी कि प्रभु दे प्यारियां ने जिहड़ी बाणी आई, प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या, ये 3 हिस्से दसे। बाणी नूं पढ़, इनू गाउणा है,
और इनू सुनना है। गावो सुनो पढ़ो नित भाई। एक चौथी गल जिहड़ी आपां कर रहे हैं उहदे उत्ते भी हजूर ने मोहर ला दित्ती और ये बचन कीता, कहन लगे लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। कला गीत ना समझी, इनू कला पढ़ना ना समझी, विचार भी यदि करनी। की हो रहा है, क्या की जा रहा है, की हुक्म ने साडे वास्ते विच कहे हुए, नहीं तो वही परंपरा चल जाएगी पुरानी जिहड़ी चलती रही। वेदां वालियां ने वेद पढ़े, पढ़ाउण वालियां ने पैसे दे दिते, गुरु अपने गुरुद्वारे, सिख अपने ठेके ते। सांझ नहीं बनेगी। 3 दिन पाठ कराया गुरु दा, पाठ विच की किया गया उहदे नाल कोई मतलब नहीं है। और ये अखंड पाठां दी तरतीब है तो बड़ा सुनहरी हिस्सा अखंड पाठ साहिब सिੱਖੀ ਦਾ बड़ा सुंदर है। ये तरीका जिहड़ा है अखंड पाठ साहिब कराउणा, पर किहड़े ढंग नाल करा रहे हैं। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ कि कुछ बाणी पढ़ी जाती घर विच, कुछ सेवा हो जाती बाणी पढ़न वालियां दी, 2-3 दिन मन टिकदा उस थान दे उत्ते। पर बनिया कि हुण कराउण वालियां ने पहले ही लिखा दिता जी असी घर विच नहीं रह सकते, सानू काम बहुत, पाठ तुसी करना है। इत्थों तक भी सुन विच आया है कि कईयां ने भी ठेका कर लिया भी लंगर भी तुसी आप ही पकाउणा है, अपना रसोई दे देंगे, राशन दे देंगे। असी नहीं हो सकते, असी आराम करना हुंदा है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। जदों समाप्ति हुई 5-7 मिनट आवांगे समाप्ति ते, उदों भी मोबाइल साढ़े हथ विच होवेगा, विच विच फोन भी सुनना है। असी अपनी करनी है मन मर्जी, पाठ करो तुसी माया मिल जाएगी। कि गुरु नानक देव जी ने जिन्हां चीज़ां नूं खंडन कीता सी वो फिर नहीं कर रहे, असी गलतियां वही परत के। अपनी करनी है मन मर्जी, पाठ करो तुसी माया मिल जाएगी। कि गुरु नानक देव जी ने जिन्हां चीज़ां नूं खंडन कीता सी वो फिर नहीं कर रहे, असी गलतियां वही परत के। और इहदे वल सानू कल्ले कराउण वालियां दी गल नहीं, करन वालियां नूं भी ध्यान देना चाहिए। जे अगला नहीं मर्यादा निभा सकता तो उन्होंने बेनती कर दो भी असी तेरे घर पाठ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं है। जिथे मर्यादा है यकीनी करके फिर अखंड पाठ साहिब करना चाहिए भी इत्थे तुसी सत्कार करोगे, अदब करोगे गुरु ग्रंथ साहिब जी का। जे करना है तो करांगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। तुसी अपना तरीका देख लो। पर हुण करिए कि साड़ियाँ दुकानां बंद होंदियां, इस करके ये चीज़ां जिहड़ियां गुरु साहिब ने बनाईयां ये तो ब्रह्म विचार। कोई इस तरह का जिहड़ा गुरु साहिब ने सिस्टम बनाया, अज दे बचन विच अकाल पुरख वाहिगुरू दी जिहड़ी अवस्था है इत्थों शुरू करदे सतगुरु सच्चे पातशाह। साचा साहिब, साचे दा अर्थ है कायम रहन वाला, जो कदी भी जिहदी हस्ती दी मौत नहीं आउंदी, जो अटल रहिंदा है, जिहदी कदी अर्थ ही नहीं बनी अज तक, उहनूं कहंदे साचा साहिब, सदा कायम रहिंदा। काल उहदे उत्ते असर नहीं करदा, ना वो बचपन विच जांदा, ना वो बुढ़ेपण विच चला जांदा। कोई उहनूं रोग नहीं, कोई उहनूं सोग नहीं, उहदे विच कोई विकार नहीं। ऐसी अवस्था दा जिहड़ा मालक है उस नूं कहंदे कि साचा साहिब साच नाए। नाए दे अर्थ कीते हन वडियाई। एक वो आप सच्चा है, एक जिहड़ी उहदी उस्तत है ना वो भी कायम रहन वाली। ध्यान दिओ, एक उस्तत असीं कर रहे हैं ना, ये उन्ना चिर रहेगी जिन्ना चिर धरती है। एक समा आवेगा भी इस धरती की उम्र खत्म हो सकती है। हर एक चीज़ की उम्र है। जिन्ने भी धरतियाँ बनियां, जिन्ने ग्रह, सूरज, जिमें बंदे का जन्म होया इस तरह इस धरती का जन्म होया है। और ये साल भी मिथे गए भी इन्ना चिर जिंदा रहेगी, उहदे तो बाद इनू तोड़ दिता जाएगा, नष्ट कर दिता जाएगा, योग नहीं रहेगी रहन दे। वैसे तो बहुत नज़दीक लगता है भी ये सृष्टि, ये धरती हुण आदमी दे रहन दे योग नहीं रही। तो जदों अकाल पुरख वेख लैंदा कि ये
चीज़ां जिहड़ियां बिल्कुल खस्ता हो गईयां, जिवें पुराना मकान ते उहनूं तोड़ दिंदा, नवां बनाउंदा। तां एक वडियाई ये है जिहड़ी लोक कर रहे ने अकाल पुरख दी, जिन्हों गुरु साहब कहंदे साच नाए। वो वडियाई जिहड़ी कोई नाम ही करे अपने आप हुंदी रहिंदी है। कोई आदमी ना बचे, कोई पुजारी ना बचे, कोई मत्था टेकण वाला ना रवे, कोई कीर्तन कथा ना होवे, तां वो वडियाई किहड़ी जिहड़ी अपने आप हुंदी, जिन्हों कलगीधर पातशाह ने कहा कि आत्म उपदेश भेस संयम को जाप सो अजपा जापै। जपण तो बिना उहनूं जिहड़े जपदे ने एक वो कायम रहिंदे ने। तीन गल्लां कहियां ना गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कि नाम रहियो, साधु रहियो। जदों उन्हां दा शरीर नहीं भी बचदा, वो फिर भी रहिंदे, वो फिर भी उस्तत करते रहिंदे। और एक वो जिहदी उस्तत हो रही, नाम रहियो, साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमंत। साच नाए, उहदी वडियाई भी सदा कायम रहन वाली है। हजूर अगे बचन कहंदे भाखिया भाओ अपार। उहदी जिहड़ी बोली है किसी भाषा विच नहीं है। मैं पहला जिहड़े आप जी नाल अर्ज कीती सी, रब दी बोली केवल प्यार है। जे किसी नूं प्यार नाल उहदे नाल बोलना आ जाए, फिर उहदी भाषा सुनदा है, उहदे नाल प्यार करदा है। आ एक दिन इतिहास का वाਕਿਆ गुरु नानक साहब जी के जीवन विच वरतिया कि उन्हां दे अत नज़दीकी ब्रह्म ज्ञानी भाई मरदाना जी किसी गलों नाराज़ हो गए कुदरती तौर पर। कई बारी वो नाराज़ होए ने। 50 साल उन्होंने गुरु नानक साहब जी के नाल कीर्तन रबाब वजाई है, बहुत लंबा समा। तो सुभावक सी जिहदे कोल ज़्यादा रहीए, लगातार उस तरह का नहीं रहिंदा आदमी, शरीरक है, सुभावक है। जे गुरु दे नेड़े रहना ना तो पहला चंगी तरह जाच सिख लैनी, नहीं तो अशरदा बन जाएगी। जेड़े गुरु साहब दे नेड़े भी रहे, तुसी इतिहास नूं फोड़ के देखो किन्ने बंदे सन जेड़े तोड़ निभ गए। क्योंकि नज़दीकता है, जिथे नज़दीकता है गुरु दी, उत्थे योग्यता भी चाहिए, अंदर हिम्मत चाहिए कुछ गल्लां नूं अखों परोखे करन दी। तां कई डोल गए विचों मूले वर्गे। होर किन्ने लोग गुरु रामदास जी दे कोल रहे। बाबा प्रिथी चंद धीरमल गुरु का पुत्र सी। शीहा मसंद गुरु तेग बहादुर साहब जी ते गोली चलाउंदा, कातलाना हमला करदा है। गुरु कलगीधर पातशाह जी का रसोईया सी गंगू ब्राह्मण। किन्ने लोग हैं जिन्हां दी व्याख्या बड़ी लंबी है। नेड़े तां रहे तां भाई मरदाना जी एक दिन नाराज़गी का कारण सी शरीरक तौर पर भुख ते लगनी, प्यास लगनी। तो उन्होंने जवाब दे दिता। एक दिन कहन लगे मैं नहीं तुहाडे नाल तुर सकदा। सतगुरु जी ने बचन कीते, मरदानिया थोड़ी देर होर तुर, तेरे नाल जदों तुरे सी तेरे नाल गल सांझी कीती सी कि साडी ये ड्यूटी लगी है अकाल पुरख वाहिगुरू वालों शब्द नाल जोड़ना सारे संसार नूं। पर अज तो इन्ने नाराज़ कि उन्होंने अपनी रबाब रखी मोढे ते, चल पे बिचे छड्ड के किते दूर जंगल विच कि मैं जा रहा वापस पंजाब, तुहाडे नाल नहीं निभदी, ना तुहाडा घर ना तुहाडा बाहर किते, ना तुसी किसी विआह शादी विच जांदे हो, कोई तरीका नहीं लगदा, समय ते रोटी नहीं मिलती, सौण का समा नहीं, उठण का वक्त नहीं है। ये सारिया चीज़ां शुरू तो रही। तो जदों ये गल हुई तो भाई मरदाना जी तुर पे, नाल सिख सन दूसरे भाई बाला जी। तो उन्होंने जदों सतगुरु ने कहा भी इनू मना के लियाइए, तो भाई बाला जी कहते ने महाराज इनू जान दो, बड़ी बारी रुसदा है। सतगुरां ने जिहड़े उत्थे बचन कहे ने, वो कहते ने इहदे नाल मैनू बहुत जरूरी काम है, बड़ा जरूरी काम।
क्यों? कहन लगे मेरा रसोईया है, मरदाना जिहड़ा मेरे वास्ते भोजन तैयार करदा है। किवें महाराज? ये कदा रसोईया कित्थे बनाउंदा तुहाडा भोजन? सतगुरां ने बचन कीते, कहन लगे दो गल्लां करके मैं मरदाने नूं नहीं छड्ड सकदा। वो किहड़ियां? कहंदे एक ते मेरी आदत है कि जिहदी मैं बांह फड़ना मैं उहदी बांह नहीं छड्डदा, इत्थों लैके ते परलोक तक उहनूं लैके जाना। दूजी गल यह है कि मेरा मरदाने नाल बड़ा डूंगा कम है। वो दोवें वक्त जदों रबाब वजाउंदा है, कीर्तन करदा है, तो वो कीर्तन मेरी खुराक है, उहदे तो बिना मैं रह नहीं सकदा। दो बचन कीते कि बाला भुजा गहे की लाजा। हे भाई बाला जी, भुजा कहंदे ने बांह नूं, मैनू लाज है कि मरदाने दी बांह फड़ी उहनूं छड्डनी नहीं। बाला भुजा गहे की लाजा, फुन उस संग हमरा है काजा। फिर उहदे नाल मैनू बड़ा जरूरी काम है। दोनों समय रबाब वजावै, दोवें वक्त तो कीर्तन करदा है, कर कीर्तन वह मोहे रजावै। दोवें समय कीर्तन नाल मैनू रजाउंदा है, इस करके मैं उन्होंने त्याग नहीं सकता। बड़ी दूर तक दी मित्रता निभाई, अखीर तक। खैर अगले दिनों विच ये भाई मरदाना जी नाल जिहड़ियां घटनावां वरतियां गुरु नानक साहब दे वक्त विच, वो आप जी नाल साझियां करांगे। हजूर ने अज बचन कीते हन कि भाखिया भाओ अपार, वाहिगुरू अकाल पुरख की जिहड़ी बोली है वो प्यार है। वो प्यार नाल सारियां नाल गल करदा है। जिन्ने जीव ने, जिन्ने लोक ने, सारियां दी बोली सुनदा है, भावें कोई किहड़ी भाषा विच बोले। वो बंदे दे अंदरली भाषा नूं ज़्यादा पढ़दा है, बाहरों बाहरों नहीं। एक उहदा ये भी नियम है, बंदे दे अंदरों जिहड़ियां अरदासां, जिहड़ियां गल्लां निजी तौर ते चल रहीआं ने, बिल्कुल नेड़ियों निकल रहीआं ने, उहनां नूं तरजीह दिंदा है, मूँह दी गल नूं घट सुणदा है। वैसे तो शब्द मूँह दे भी चंगे होने चाहिए। सतगुरु ने अगले बचन कीते, कहन लगे आख है मंगै देह देह दात करे दातार। हजारां ही लोक, हजारां ही जीव जंत ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਖ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੈ, ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੇ? किन्ने कन्ना नालों अरबां लोकां दी, ते केवल मनुखां दी नहीं, सारे लोकां दी, जीवां जनतां दी, जिहड़े मनुख नहीं भी हैं। सच्चाई ये है कि जिहड़ा धर्म है ना, जिहड़ा नाम शब्द ते गुरबाणी है, असी कई बारी भरम विच पै जाने आ। ये बाणी कल्ले बंदियां वास्ते है नहीं। हो सकता है इस बाणी का लाभ इस बाउंड्री विच उगे हुए रुख साडे तो ज़्यादा लै लैण। असीं तां मनुख हाँ ना, साडे विच एक समझ पा दिती। असीं तां वेख वेख के करना भी करना है कि नहीं करना, सुनना है कि नहीं सुनना। पर वो सहज सुभाए सुन ही रहे ने, उन्हां नूं लाभ प्राप्त हो ही रहा है। असीं तां कई फैसले लैणे ना जिंदगी दे अंदर भी, ये सुनना है कि नहीं सुनना, लोड़ वास्ते सुनना है। धर्म नूं भी बंदा अपने स्वार्थ वास्ते सुनदा, जिन्नी उन्होंने लोड़ है, बकायदा नहीं सुनता, उहदे तो बिना नहीं है। वो नहीं सुनेगा बिल्कुल, उहदा स्वार्थ है। जो मैं सीखना है मैं वही सुना, मैनू की लोड़ है होर सुनन दी, क्योंकि वो सीखना है, उहदे नाल माया कमाउणी है, उहदे नाल धंधा करना है, बाकी कौन सुनेगा। पर सतगुरु ने बचन कीते, ये जिहड़ी बाणी है इकल्ले शरीरधारी मनुखां वास्ते नहीं, शब्द सारियां ते असर पाउंदा है।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਰੁੱਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਐ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ। ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਿਆ ਉਦਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾ, ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ 4 ਕਣੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਕਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਰੁੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਰੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਚੀਂਟੀ ਤੋਂ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਹਨ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਹ ਹੈਣ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਪਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਨ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ।
जे रब उन्हां जानवरां दी आवाज़ सुन सकदा है तो गुरु भी सुन सकदा है। उन्होंने उन्हां दी गल सुन लई, किसी भाषा विच उन्हां नाल गल भी कर लई। तुसीं वेखोगे कि गुरु साहब किन्ने देशां विच गए ते सारे देशां दे लोकां नाल किन्नियां भाषावां ने उत्थे गल कीती, किवें कर लई, किहड़ा तरीका सी कि जिथे गए पहला 1 साल पढ़न ते लाया उस देश दे विच भी मैं बोली सीखनी इस देश दी, किते नहीं उत्थे लाया, सीधी गल कीती। तां इह जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू सारियां दी भाषा सुनदा है ते जिहड़ा उहदे नाल जुड़ गया वो भी सारियां दी भाषा सुनन लग पैंदा है। की बोलदे ने, बहुत कुछ सुनदा है उसनूं। हवा, आकाश, पानी, अग्नि, इन्हां विचों बड़ा कुछ खिच लैंदा, बड़े कुछ उहदे कोल सिस्टम आ जांदे भी वो रुखां दी, बिरखां दी, वो पशुआं दी, जीव जंतुआं दी, आदमियां दी ते गल ही बड़ी सीधी जी, वो तो उन्हां दे ते चेहरे तो दिस पैंदा, अंदरों सुनना ही नहीं पैंदा। मनुख दा ते एक सीधा ही तरीका उहदे शरीर दे सिग्नल ही दस दिंदे आदमी की कहना चाहुंदा है, इहदा जीवन किवें दा है। बहुत कुछ तकरीबन 80% उहदा चेहरे तो, हत्थां पैरां तो, रोटी खाण तो, बोलण तो पता लग जाता है इस बंदे की जीवन धारा कित्थे करके बह रही है। पर इस तरह वो सारियां दी गल सुनने वाला, फिर उन्हां सारियां दी गल सुन के दात करे दातार, उन्हां नूं जिहड़ियां चीज़ां जरूरी ने वो देंदा है, जिहड़ियां उन्हां नूं ठीक नहीं रहणगियां वो नहीं देंदा। जदों कोई मंगदा है ना उहदे तो इन्ना सियाणा है कि जदों कोई उहदे अगे अरदास करदा है तां वो वेखदा है भी जिहड़ी चीज़ मंग रहा है इहनूं दुखी करेगी जां सुखी, तां वो देख के उहनूं देंदा है, वैसे नहीं देंदा। आ तरीके जिहे बना दिते कई धार्मिक मजहब दे लोकां ने, ये वैसे तां गुरु साहब ने इन्हां नूं गुप्त रखिया, शब्दां दे राहीं रब तो कुछ मना लेना धक्के नाल। गुरु साहब ने कहा सी सीधी सीधी अरदास कर, सरल प्रेम कर, सिर्फ नाम जापो दा, होर ना कोई करी काम। तां कई जुगतां समझ विच आ गईयां गुरमुखां दे, उन्हां ने वरत लईआं, वो तो बड़े परफेक्ट सन इस मामले विच भी इस शब्द द्वारा एक कारज सिद्ध हो सकता है, इस नाम द्वारा, इस बाणी द्वारा एक काम हो सकता। पर जदों ये गल्लां आ गईयां आम लोकां दे हिस्से विच, सिੱਖੀ कमाई नहीं, बस असी भी लिख दिते भी इस शब्द नाल ये होवेगा, तां लोकां ने उहदी बड़ी दुरवरतों कीती। सीधे सावें आम तौर पर तुसीं देखदे हो चैनलों के उत्ते भी इस तरह करो ये हो जाएगा, वस विच हो जाएगा, फलाना चलदा है ना सब कुछ। तां गुरु साहब ने सानू सरल तरीका दसिया कि तुसीं सीधा उहदे नाल जुड़ो, उहदे नाल की होएगा, जिहड़ी चीज़ तुहानू फायदेमंद है वो मिलेगी। वैसे गुरबाणी किसी का नुकसान नहीं करती, पढ़ेगा कोई भी भला होवेगा। तां इस ढंग दे नाल सतगुरु ने किरपा कीती, कहन लगे वो सारियां नू दात करदा है, देंदा है, जिहड़ी चीज़ नहीं देंदा वो भी ठीक कारण हुंदा है कोई ना कोई। दात करे दातार। फिर सतगुरु जी ने अगे बचन कहे कि हुण इत्थों तक तो आम संसार की व्याख्या से, जिथों तक आपां विचार कीती है कि इस ढंग दे नाल वो सारियां नू दात करदा है, देंदा रहिंदा है। इत्थों तक एक विषा इस पौड़ी का समाप्त हो जाता है। हुण गुरु साहब ने अगला विषा गुरसिੱਖੀ का बंदगी करन वालियां दा आरंभ कीता है। हुण इत्थों तक तां वो देंदा सी सिर्फ, हुण अगली गल शुरू हुई वो लैंदा भी है कुछ। पहलां तां देंदा सी, हुण लैण दी गल शुरू हो गई। उहदे अगे की रखीए, भेट की करिए। जिस चीज़ नूं वेख के जिन्नूं वो देखण तो बाद सानू दरबार दिसन लग पवे, उहदा की दईए उसनूं, वो चीज़ किहड़ी है, भेटा किहड़ी दईए। सच्चाई ये है सारी उम्र बंदा गुरु तो मंगदा है,
गुरु भी सिख तो एक बारी मंगता है, सारे नहीं उन्होंने दे सकते। सतगुरां ने मंगया ना, कलगीधर पातशाह ने सिर मंगे, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने एक सिख तो ਉਹਦੇ सारे दिन की कमाई मंग ली। घुंगणियां बेचदा तुसीं जाणदे हो, सोमा शाह जिन्हों कहंदे ने। तां ये तरीका है मंगण दा, गुरु भी मंगदा है, पर वो किसी होर लहजे विच रखण वास्ते नहीं, क्योंकि सारा कुछ उहदा अपना है तो वो किसी चीज़ नूं अपनी समझदा नहीं। सारा ब्रह्मंड उहदा अपना ही है। इस करके अगे जिहड़ी गल शुरू होवेगी अगले विषय के अंदर, फिर के अगे रखी है सानू उहदे अगे की भेंट करना चाहिए है। जित दिसै दरबार, जो भेंट करन दे नाल सानू उहदा दरबार दिस पवे। मूहों के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। मूँह तो सानू की बोलना चाहिए है कि जिन्हां लफ्ज़ां नूं वो सुने ते सानू प्यार करे। और वो लफ्ज़ किवें बोलने ने, वो लफ्ज़ किहड़े ने जिन्हां नूं रब सुने ते प्यार करे। अगे उन्हां चीज़ां दा नाम लिया, एक तो वेला दस्या, समा दस्या कदों बोलने ने, किहड़ा वक्त है, उहदा वक्त दस्या अमृत वेला। बोलना की है, सच नाम, सच्चे नाम नूं बोलना है। तो दो चीज़ां कट्ठियां करनियां ने, हैण विरोधी दोवां नूं इकट्ठे कर देना। वो दो चीज़ां ने, वडियाई और विचार। वडियाई बंदा उदों करदा जदों विचार खत्म हो जाती है, विचार वडियाई उदों करेगा। तो जदों विचार करदा उदों वडियाई नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि विचार यानी कि हिसाब किताब, चीज़ां नूं तोलना, वेखना, छांटना विचों। हुण इस मन नूं ये जुगत दसनी है अमृत वेले दे विच कि तू सच्चे नाम दी वडियाई करनी है ते विचार करनी है। ये किवें जोड़ियां दोवें चीज़ां इस विषय विच आउणगीआं, वडियाई ते विचार इकट्ठियां किवें। फिर जदों इस तरह कोई वडियाई विचार करदा है तां फिर बख्शिश रूपी कपड़ा उहनूं मिलदा है। करमी आवे कपड़ा, बख्शिश रूपी कपड़ा। कपड़ा यानी कि जिवें कोई आदमी किसी थां तो कुछ खरीदण जाता है ना, तो दुकानदार पुछदा तुहाडे कोल थैला है, कपड़ा है कोई जिहदे विच पाओगे समान। तां जे वो कहदा भी मेरे कोल नहीं पहलां, तां पहलां उहदा प्रबंध करदा भी इहदे किहड़ी चीज़ दे विच पा के देना इसनूं। वो पार्टी नहीं होनी चाहिए, सुराख नहीं होने चाहिए उस कपड़े विच, उस थैले विच, नहीं तो राह विच डिग जाएगी। तां गुरु पहला, परमात्मा सब तो पहला रहमत दा, बख्शिश दा कपड़ा सिख नूं दिंदा है भी इहदे विच हुण तैनूं मैं पा के देंगा जिहड़ी चीज़ है। वो किहड़ी वस्तु? हजूर कहंदे नदरी मोख द्वार। मोख द्वार दा मतलब मोक्ष। मोख का अर्थ है मुक्ति। आ मोख शब्द वरत्या जाता वैसे, अखंड पाठ साहिब की मोख कहने आप, ये शब्द बड़े चुन के लाए गए सन। खैर समा नहीं इन्हां शब्दों नूं ज़्यादा विस्तार विच लैके जाण दा। नानक एवं जाणीए सब आपे सचियार। अखरी अर्थ मैं तुहाडे नाल साझे कर दिते ने। इस पौड़ी का यह हिस्सा अगे की रखिए कि दरबार दिसे, और मूँह तो की बोलीए कि प्यार करे। अमृत वेले विच वडियाई ते विचार दोवें चीज़ां इकट्ठियां किवें हुंदियां। बख्शिश का कपड़ा की है और मोख दरवाजा की, ये कल दे दीवान दे अंदर यतन करांगे।